زندوں کی زمین پر ہیں، اس لیے خدا کی تعریف کر سکتے ہیں، خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں، اس کو مبارک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہم زندہ ہوتے تو خدا کا کلام سن نہیں سکتے، ہم خدا کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو آج کا دن دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم بھی اس دن جائیں گے، عبادت کریں گے یا کسی سے ملیں گے، لیکن وہ نہیں دیکھ سکیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، یا میرا یہ خیال ہے کہ خدا نے ہم پر اپنا فضل کیا ہو، خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے تاکہ ہم اس کی آواز بھی سنیں اور اس کے نام کو چلا دیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے 91 زبور میں سے اس کی 14 اور 15 دیکھیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا بڑے غور سے، میں پڑھنے لگا ہوں خدا کے کلام میں سے۔ کلام خدا کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام یہ فرما رہا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ یہاں پہ جو بات ہے، ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے دل لگانے کا۔ یہاں پہ کون بات کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا، یعنی کہ یہاں پہ انسان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ اگر کوئی انسان کسی سے دل لگا لے تو دن رات اس کے خیال میں رہتا ہے، اس کی فکر میں رہتا ہے، اس سے کچھ ہو تو نہیں گیا، اس سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی۔ اگر کوئی پریشانی تو فوراً اس کا پیچھا کرتا ہے، وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ خدا جو پوری کائنات کا خدا ہے، خدا بندوں کا خدا ہے، بادشاہ کا بادشاہ، لشکروں کا خدا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر اس کے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ اور یہ خدا کا کلام ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں۔ اب یہ جو بات ہے دل لگانے کی، اس میں ایک شرط ہے، اور شرط ہے دل لگانے کی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں نے خدا سے دل بھی لگا لیا اور خدا میری نہیں سن رہا۔ یہ رانگ بات ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ خدا کا کلام صداقت ہے۔ وہ فرما رہا ہے تو نے دل لگا لیا، میں تجھے چھڑا لوں گا۔ یہاں پہ سچائی ہے، یعنی کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ غلط ہیں، وہ غلط بات کرتے ہیں۔ اور کلام بتاتا ہے کہ تو دل لگا کے دیکھ، پھر میں تجھے چھڑاؤں۔ ہاللیلویہ۔ خدا چھڑانے کی بات کر رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے خدا سے دل لگایا ہے کہ نہیں لگایا۔ اگر ہمارے خاندانوں کے اندر مصیبت پر مصیبت ہے، دکھ پر دکھ ہے، تو سمجھے ہم نے دل نہیں لگایا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر کمی ہے اور کمیاں ہوتی جا رہی ہیں، تو پھر بھی سمجھے آپ نے خدا سے دل نہیں لگایا، کیونکہ آپ چھڑائے نہیں جا رہے۔ اگر آپ نے دل لگایا ہو تو آپ تو چھڑائے جائیں گے، فوراً چھڑائے جائیں گے۔ خدا کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں۔ یہاں پہ انسان وعدہ کر کے اس کو لبانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ گناہ گار ہے، اور خدا یہاں پہ جو کریٹر ہے پوری کائنات کا، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے چھڑاؤں گا۔ یعنی کہ وہ تو قدرت رکھتا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ایسا کام مشکل نہیں۔ کلام میں لکھا ہے انسانوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا سب کچھ کرے گا۔ یعنی کہ ہمیں جو شرط اس میں رکھی گئی ہے، دل لگانے کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں خدا سے دل لگانا ہے۔ اور خدا نے صرف ایک بات نہیں کی کہ میں تجھے اسی بیماری سے چھڑا لوں گا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ میں تجھے چھڑاتا رہوں گا، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ابلیس سے، ہر طرح کی بیماری سے، ایوری تھنگ ڈیزیز کوئی دنیا میں بھی ہوگی، میں تجھے چھڑانے کی قوت رکھتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن بات ہے دل لگانے کی، سچے دل سے دل لگانے کی۔ یعنی کہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے وہ غزل ہے اس کی، جیسے غلام نبی کی غزل ہے، وہ کہتا ہے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ یہ زندگی کے لیے روگ بننا چاہیے۔ جب آپ خدا سے دل لگا لیں تو یہ زندگی کے لیے روگ بن جانا چاہیے، یعنی کہ آپ کا دن اور رات دھیان جو خدا پر رہنا چاہیے۔ تو جب آپ کا دھیان خدا پر رہے گا، اس کے کلام پر رہے گا، تو خدا کی نظریں بھی آپ سے نہیں ہوتی، کیونکہ
फरमा रहा है, उसका तो वादा है, इंसान तो बेवफा हो जाएगा लेकिन खुदा फिर भी वफादार है, वो वफादार खुदा है। इसलिए वो कहता है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया मैं उससे बनी इसराइल कौम ने कितनी गलतियां की, कितने बड़े बड़े गुनाह किए, बुतों का भी पूजा, बछड़े बना डाले और खुदा को रद्द भी किया, लेकिन खुदा ने फिर भी उसको माफ किया। जब भी उन्होंने माफी मांगी, जब भी क्या खुदा के सामने गिड़गड़ाए, खुदा ने उनकी सुन ली, उन्हें माफ किया। क्योंकि खुदा लोगों से प्यार करता है, खुदा लोगों की फिक्र करता है, खुदा चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। और आगे जो आयत लिखी है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। ये भी आयत बड़ी अच्छी, सरफराज करने की बात। यहाँ पे खुदा कह रहा है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। अब यहाँ पे जो बात है नाम पहचानने की हो रही है, पहचान की बात हो रही है। हम खुदा को जानते तो जरूर हैं लेकिन पहचानते नहीं। और यहाँ पे पहचान की बात है। जानना होता है कि मैं उस शख्स को जानता हूं, वो इसी कॉलोनी में रहता है, लेकिन कभी पहचान तो नहीं होती। जानने में और पहचानने में फर्क है। यानी कि हमें खुदा को पहचानना है, जानना तो है, कलाम को पढ़ते हैं, पता हमें खुदा है, खुदा ने ये काम किए हैं, खुदा ने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, हमें भी बनाया, और खुदा ने हमारी फिक्र करता है, खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा से दुआ करके खुदा सुन लेता है और हमें मुआफ भी कर देता है। लेकिन कभी इस पहचान में बढ़े नहीं कि खुदा के साथ हमारा रिलेशन क्या है, खुदा के साथ हमारा तल्लुक क्या है। अक्सर खादम जब दुआ करते हैं तो वो कहते हैं खुदाया मैं तेरा नौकर हूं, मैं पादरी, मैं नौकर हूं। कलाम बताता है कि जितना उसे कबूल किया उसने उसे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यहाँ पे फर्जंद की बात है, बेटों की बात है। हम नौकर नहीं हैं, हम बेटे बेटियां हैं। अगर नौकर बन के रहेंगे तो नौकर को क्या पता कि मालिक क्या करता है, मालिक क्या कर सकता है, उसको ये भी नहीं पता होता। लेकिन बेटे को तो बाप की हर बात का पता होता कि मेरा बेटा क्या करेगा, बाप को भी पता होता। यानी कि दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। पहचान में बढ़ना है, इसलिए वो कहता है मैं उसे सरफराज करूंगा कि उसने मेरा नाम पहचाना है। कौन कौन पहचानता है यीशु मसीह? आप इसे पहचानते हैं? अक्सर मैं सवाल करता हूँ, छोटे छोटे सवाल है, जैसे खुदा के बारे में सवाल करूंगे, खुदा खुदा का लफ्ज़ मतलब क्या है तो बताएं। खुदा खुदा क्या है? क्या खुदा? खुदा का मतलब है क्रिएटर, खलक करने वाला, जिसने पूरी कायनात खलक की है, वो है खुदा। हम इस बात को जान गए हैं, यानी कि खुदा से बढ़कर कोई नहीं। आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है, सुना भी होगा, इसमें अक्सर खुदावंद का जिक्र हुआ है, लेकिन खुदा कभी किसी ने किसी का नाम नहीं रखा। आज तक पूरी दुनिया के अंदर मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी ने अपने बेटे का नाम खुदा रख दिया हो, या किसी बीवी ने अपने आदमी को कहा कि तुम मेरा खुदा है। खुदावंद कहती है, खुदा नहीं कहती, कि खुदा एक ही है, वो पूरी दुनिया का खुदा है, पूरी दुनिया का बनाने वाला है। और आगे हम देखते हैं, जैसे कहता खुदावंद, खुदावंद का क्या मतलब है? देखिए आपके सीखने का काम है, सीखने छोटे लफ्ज़ है, आपकी तरबियत हो रही है। वैसे मैं सुना के बैठ दूंगा तो आपको बरकत को नहीं पढ़ना, मुझे भी नहीं पढ़ना। खुदावंद, खुदावंद का मतलब मुझे पता है। खुदावंद 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 का मतलब है मालिक। जैसे हम देखते बाइबल मुकद्दस में, जो सारा थी इब्राहिम को खुदावंद कहती थी, इस तरह रिबका भी इसहाक को खुदावंद कह के पुकारती थी। यानी कि जो मालिक होता है, क्या होता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो नौकर पर जो हाकिम होता है। और जब यीशु मसीह ने स्लीपर जान दी तो वो क्या हो गया? खुदावंद। उसने हमें अपना लहू बहाकर खरीद लिया, उसने हमारी कीमत चुका दी, फिर वो हमारा मालिक
जान दी तो वो बन गया खुदा व यीशु मसीह, यानी कि वो हमारा मालिक है। उसने अपना पाक लहू बहाकर जबकि हम गुनाहगार हमें खरीद लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगली आयत है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। वो मुझे पुकारेगा। अक्सर लोग कहते हैं हम रोजे रखते हैं, हम दुआएं करते हैं, खुदा सुनता ही नहीं, खुदा किधर रह गए। अगर हम 121 ज़बूर में देखें, वो कहता है तेरा मुहाफिज न ऊँघेगा ना सोएगा। खुदा तो सोता ही नहीं है, खुदा नहीं सोता। सोते हैं तो हम सोते हैं, ऊँघते हैं तो हम ऊँघते हैं। वो तो दरवाजा नौकर, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आके तुम्हारा खाना खाऊं, वो दरवाजे पे खड़ा है, हम दरवाजा खोलना नहीं चाहते। और कलाम में लिखा है मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा। तो ऐसा खुदा हमारा नहीं कि जो गलत बात है। वो कहते हैं तुझे मुझे पुकारेगा मैं जवाब दूंगा, यानी तू पुकार के तो देख, यानी कि हमारी आवाज जो है उस तक पहुंचती है। अगर हम देखें यूना नबी की तरफ देखें, वो जैसे कि आपने जो कहानी को सुना होगा, वो मछली के पेट में है और मछली जो है वो समंदर की गहराई के अंदर है। और समंदर की गहराई के अंदर अब वहां पर यूना को कोई वकील तो मिल नहीं रहा, ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना कोई अजीज है, सिर्फ अकेला मछली के पेट में है। और अब मछली के पेट के अंदर वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। अब वहां पर उसको कोई छुड़ा ही नहीं सकता। यानी कि मेरा जो ख्याल है, मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है कि ऐसी कोई हस्ती नहीं थी जो उसे पानी में से मछली के पेट में से निकाले, खुदा के अलावा। और यहाँ पे जब उसने देखा कि कोई सबब नहीं लग रहा, कोई समझ नहीं आ रही, तो उसने मछली के पेट में घुटने टेक और फिर उसने दुआ की। और कलाम में लिखा है जब अपने दोस्त ने कहा जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को पुकारा, उसने मछली के पेट में से मेरी आवाज और मुझे आवाज दी। हालेलुया। यानी कि जहां पर आप देखते हैं कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अगर यूना की दुआ समंदर में से, मछली के पेट में से खुदा के पास जा सकती है, तो हम तो जमीन पर बैठे, हमारे पास फैसिलिटीज भी है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमारी दुआ खुदा यानी कि हमने खुदा से दिल नहीं लगा। आगे लिखा है मैं मुसीबत में उसके साथ साथ। ये बड़ी है, खुदा कहता है मैं मुसीबत में उसके साथ साथ रहूंगा। यानी कि हम लोग जो हैं मुसीबत में एक दूसरे को छोड़ देते हैं। हमारे ब्लड रिलेशन होंगे ना, तो जब मुश्किल आएगी हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता खाना भी खिलाएंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब हम देखें कि उस सड़क पर हमारा चीज आ रहा है तो हम सड़क में से दूसरी सड़क पर चले, क्योंकि हमें पता चलेगा अब इसने ये खाना खाना होगा या इसने पैसे लेने होंगे। ऐसे होता ना। लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं मुसीबत में भी तेरे साथ रहूंगा। मुसीबत में मैं आपसे एक मिसाल पेश करता हूँ। मैंने पर डॉक्टर की छुट्टी पड़ी, किताब में यूं लिखा है कि एक शख्स था, वो अक्सर समंदर के किनारे जाता और समंदर के किनारे वो जाता जब, तो वहां पे चलता और दुआ करता रहता। अक्सर जब वो चलता तो उसके साथ साथ यीशु मसीह भी चलता। तकरीबन 2 माह 3 माह ऐसे गुजरे, वो ऐसे यीशु मसीह के साथ चलता, बातें करता रहता। और 2-3 माह के बाद उस पर अचानक मुसीबत पड़ी, और जब मुसीबत उस पर पड़ी तो बहुत ज्यादा बीमार, इतना बीमार हो गया उसने काबू में रखा। तो जब थोड़ा सा सेहतमंद हुआ तो उसने यीशु मसीह को कहा कि तू कहाँ रहता? अक्सर हम यहाँ पे चलते थे और मैं उससे बातें किया था, मुझसे कौन सी गलती होगी तूने मुझे छोड़ दिया? वो जब रेत पर चल रहा था उसने देखा, मुड़ मुड़ के देखता रहा तो उसके 2 ही पाँव नजर आते, फिर मुड़ मुड़ के देखता 2 ही पाँव नजर आते। आखिरकार वो बैठ गया और गिला करने लगा खुदा से, देख जब मैं खुशहाल था तो मेरे साथ, अब मैं मुसीबत में रहूं
इतनी मुसीबत उठा के वापस भी आने मेरे साथ आई। फिर उसे आवाज आती है कि नहीं बेटा, मैंने तुझसे वादा किया, कलाम में लिखा है कि मैं मुसीबत में तेरे साथ साथ रहूंगा। ये जो तू बार बार अपने पाँव के निशान देख रहा है, ये तेरे नहीं, ये तो मेरे हैं, तुझे तो मैंने गोद में उठाया हुआ। हालेलुया। यानी कि खुदा अपने लोगों को मुसीबत में गोद में उठा लेता है, और हम अक्सर समझते हैं वो हमें छोड़ गए। ऐसा नहीं, यहाँ पे वो भी शक में पड़ गया है, लेकिन जब खुदा ने उसे कहा कि मैंने तुझे गोद में उठाया है, यानी कि अगर आज हम को मुसीबत आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, तो तुम ना रखें कि खुदा ने आपको, इसलिए उससे दिल लगा ले। अगर आपकी जिंदगी में कभी मुश्किल है, तो दुख है, तकलीफ है, जब उसे दिल लगा लेंगे तो मुश्किलें खुद ब खुद हराना शुरू होगी। यानी कि खुदा वादों में सच्चा होता है, वो अपना वादा निभाएगा। आमीन। दुआ करेंगे, आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, मेहरबान खुदा पाक खुदा, तेरा कलाम जो खुदा मेरे कदमों पर चला, रात की रोशनी है, तेरा कलाम खुदा उन लोगों तक तेरी मर्जी के मुताबिक